Let's turn today to the Epistle of Jude. आइए आज हम यहूदा की पत्री को देखें। The Epistle of Jude, verse 1. Here is a letter written by यहूदा की पत्री वचन 1 में यह यहूदा द्वारा लिखा गया पत्र है। Jude, who was one of the physical blood brothers of Jesus, यहूदा प्रभु यीशु के शारीरिक रक्त भाइयों में से एक था। brother of James, who has written the Epistle of James, also another brother of Jesus, son of Mary. और याकूब का भाई भी जिसने याकूब की पत्री लिखी है, वह भी प्रभु यीशु का एक और भाई है जो मरियम का पुत्र था। And along with James had been unbelieving in the entire earthly lifetime of Jesus, as far as we know. और जो याकूब के साथ साथ जहां तक हम जानते हैं प्रभु यीशु के पूरे पृथ्वी के जीवन काल में अविश्वासी रहा था। And was converted after the resurrection. और पुनरुत्थान के बाद उनका परिवर्तन हुआ था। And who obviously repented so wholeheartedly of his years of unbelief. और जिसने स्पष्ट रूप से अपने इतने वर्षों के अविश्वास के लिए पूरे दिल से मन फिराव किया था। That he turned out to be a bond servant of Jesus Christ. कि वह प्रभु यीशु मसीह का एक बंधुआ गुलाम बन गया। And here he writes, Jude, a slave. और यहाँ वह लिखता है, यहूदा यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम, A bond slave एक बंधुआ गुलाम of Jesus Christ. यीशु मसीह का। We've considered that before, that हमने पहले भी इस पर विचार किया है there is a difference between a servant and a slave. कि एक नौकर और गुलाम के बीच अंतर होता है। Jude was a bond slave. A slave is one who has no rights over himself. यहूदा एक बंधुआ गुलाम था। एक बंधुआ गुलाम वह होता है जिसका स्वयं पर कोई अधिकार नहीं होता। He only has to do the will of his master. उसे केवल अपने स्वामी की इच्छा पूरी करनी होती है। And when they said that they were bond slaves of Jesus Christ, it meant that they had given up their own will in everything. और जब उन्होंने कहा कि वह यीशु मसीह के बंधुआ गुलाम थे, तो इसका मतलब था कि उन्होंने हर चीज में अपनी इच्छा को त्याग दिया था। They had given up their own plans, their own ambitions. उन्होंने अपनी योजनाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दिया था। And they were there to do the will और वहां वे अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरा करने के लिए वहां थे, of Jesus Christ their Lord. अपने प्रभु यीशु मसीह की। Brother of James, to those who are the called, याकूब का भाई उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता के बुलाए गए हैं, beloved in God the Father, परमेश्वर पिता के प्रिय कहलाए गए हैं and kept for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए रखे गए हैं। Beloved of God and kept, preserved for Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। May mercy, peace and love be multiplied to you. आप पर दया, शांति और प्रेम बढ़ते जाएं। He prays first of all that God will show them mercy, something that we all need. वो सबसे पहले प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें दया दिखाए, कुछ ऐसा जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। And that the peace of God, it's a greeting that one finds at the beginning of almost every epistle. और परमेश्वर की शांति एक अभिवादन है जो हम सभी पत्र के शुरुआत में देखते हैं। The peace of God reigning in our hearts and bringing peace between believers. परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में शासन करती रहे और विश्वासियों के बीच शांति ला सके। And love, the love of God ruling in our hearts और प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में शासन करता रहे and being manifested in the mutual relationships of believers. और विश्वासियों के रिश्तों में प्रकट हो सके। Be multiplied to you as God gives it to us, made increase so that this peace and love can be manifested. जैसा कि परमेश्वर ने हमें दिया है, आपके लिए इसे कई गुना बढ़ाया जाए ताकि ये शांति और प्रेम प्रकट हो सके in our relationship with one another. एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तों में। And then Jude writes, Beloved, while I was making every effort और फिर यहूदा लिखता है, प्रियो, जब मैं हर संभव प्रयास कर रहा था to write to you about our common salvation. हमारे सामान्य उद्धार के बारे में आपको लिखने के लिए, He says, I actually wanted to write something about वो कहता है, मैं वास्तव में कुछ लिखना चाहता था what our salvation is all about. I think something like Paul's letter to the Romans on justification and sanctification, etc. हमारे उद्धार के बारे में। मुझे लगता है कि औचित्य और पवित्रता आदि पर रोमियो को पौलुस के पत्र जैसा कुछ। But he says, that's what I was planning to write to you all about the way of salvation.
लेकिन वो कहता है कि यह वही है जो मैं आप सभी को उद्धार के तरीके के बारे में लिखने की योजना बना रहा था। But as I thought about that, I felt the necessity. लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हुई। I felt constrained मुझे बाध्य होना पड़ा to write to you appealing that you earnestly contend for the faith which was once for all delivered to the saints. आपको यह विनंती करते हुए लिखने के लिए कि आप उस विश्वास के लिए ईमानदारी से संघर्ष करें जो एक बार संतों को दिया गया था। As he planned to write about salvation, the Holy Spirit constrained him to write about something else. क्योंकि उसने उद्धार के बारे में लिखने की योजना बनाई थी, पवित्र आत्मा ने उसे कुछ और लिखने के लिए बाध्य किया। Because there was something else that needed to be written as part of Scripture. There was something else that these people needed to hear about. क्योंकि कुछ और था जिसे पवित्र शास्त्र के भाग के रूप में लिखे जाने की आवश्यकता थी, कुछ और था जिसके बारे में इन लोगों को सुनने की आवश्यकता थी। Because the gospel had been corrupted even by that time when Jude wrote in the first century. क्योंकि जब यहूदा ने पहली सदी में लिखा था तब तक सुसमाचार उस समय से ही भ्रष्ट हो चुका था। And he says, the Spirit of God constrained me to write about something else. And it's very good to listen to the voice of the Spirit. और वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ और लिखने के लिए विवश किया और आत्मा की आवाज सुनना बहुत अच्छा है। When he leads us to write about something else than what we plan to write. And there Jude, being a bond slave of Jesus Christ, gave up his own will and what he wanted to write and wrote what the Spirit prompted him to write. No doubt that was the right thing. जब वो पवित्र आत्मा हमें कुछ और लिखने के लिए प्रेरित करता है उस विषय के विपरीत जिसकी हम लिखने की योजना बनाते हैं, और यहूदा यीशु मसीह के एक बंधुआ गुलाम होने के नाते अपनी इच्छा और वह जो लिखना चाहता था उसे छोड़ दिया और वह लिखा जो आत्मा ने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सही बात थी। Very often what our reason tells us is not the right thing. It's the prompting of the Spirit that's बहुत right. बार जो हमारा तर्क हमें बताता है वह सही बात नहीं है, यह आत्मा का संकेत है जो सही है। And we need to live by the promptings of the Spirit and set aside what our reason tells us. Reason suggested to Jude to write something about salvation, but the Spirit prompted him to write about something more important, to contend earnestly. और हमें आत्मा के संकेतों से जीने और हमारे तर्क के अनुसार जो हमें बताता है उसे अलग करने की आवश्यकता है। तर्क ने यहूदा को उद्धार के बारे में कुछ लिखने का सुझाव दिया, लेकिन आत्मा ने उसे कुछ और महत्वपूर्ण के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। To fight spiritually, not physically. Our kingdom is not of this world. We do not fight physically. But spiritually, to carry on a vigorous defense, to stoutly defend. ईमानदारी से संघर्ष करने के लिए, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से लड़ने के लिए। हमारा राज्य इस दुनिया का नहीं है, हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से लड़ते हैं, एक जोरदार बचाव करने के लिए दृढ़ता से। The faith, the true doctrine which has been entrusted by God through Jesus Christ, through the apostles, to the saints once for all. He says there are people corrupting it. सच्चा विश्वास, सच्चा सिद्धांत जो ईश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से संतों को एक बार के लिए सौंपा है, वो कहता है कि कुछ लोग इसे भ्रष्ट कर रहे हैं। And he says, I want you to fight for it, preserve it. For he says certain persons have crept in unobserved. और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए लड़े, इसे सुरक्षित करें। वो कहता है कि कुछ लोग बिना देखे ही अंदर घुस आए हैं। The devil's got his fifth columnists, his agents whom he sends into churches to corrupt the doctrine, to corrupt the life. शैतान के पास उसके पांचवें स्तंभकार है, उसके एजेंट है जिन्हें वे कलीसियाओं में भेजता है ताकि सिद्धांतों को भ्रष्ट किया जा सके, जीवन को भ्रष्ट किया जा सके। He says these were long beforehand marked out for this condemnation. They were written down as sentenced for judgment. वो कहता है कि इन लोगों को इस निंदा के लिए बहुत पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, उन्हें न्याय के लिए सजा के रूप में लिखा गया था। Ungodly persons. Who are these people who have crept into the churches and corrupted the faith? अधर्मी व्यक्ति, ये लोग कौन है जो कलीसियाओं में घुस आए हैं और विश्वास को भ्रष्ट कर दिया है? The very first mark of them is that they are ungodly. उनका पहला निशान यह है कि वे अधर्मी हैं। They may be clever, but as J.B. Phillips paraphrases it, they have no real reverence for God. वे चतुर हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि J.B. फिलिप्स ने इसे स्पष्ट किया है, उनमें ईश्वर के प्रति कोई वास्तविक श्रद्धा नहीं है। When a man doesn't have reverence for God,
That means when a man doesn't fear God, the Bible calls him ungodly. जब किसी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर का भय नहीं मानता है तो बाइबल उसे अधर्मी कहती है। And such an ungodly person is a perfect person as for Satan to use as a fifth columnist in a church. One who can corrupt the church and its doctrine. और ऐसा अधर्मी व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति है जिसे शैतान कलीसियाओं में पांचवें स्तंभकार के रूप में उपयोग कर सकता है, जो कलीसियाओं और उसके सिद्धांतों को भ्रष्ट कर सकता है। These people who have crept in, he says, the first mark of them is that they don't have any fear of God. ये लोग जो अंदर घुस आए हैं, वो कहता है उनका पहला निशान यह है कि वे ईश्वर का भय नहीं मानते। And when a person doesn't have any fear of God, he begins to have a very loose and lax attitude towards sin. और जब किसी व्यक्ति में परमेश्वर का भय नहीं है तो वे पाप के प्रति ढीला दृष्टिकोण अपनाते हैं। Do you know that it's possible to intellectually understand all the doctrines correctly and yet to have a very loose attitude towards sin? क्या आप जानते हैं कि बौद्धिक रूप से सभी सिद्धांतों को सही ढंग से समझना संभव है और फिर भी पाप के प्रति बहुत ढीला रवैया रखना संभव है? Because a right attitude towards sin doesn't just come through understanding various doctrines. It comes through the fear of God. It doesn't say an understanding of doctrine is the beginning of wisdom. क्योंकि पाप के प्रति सही रवैया विभिन्न सिद्धांतों के समझने के माध्यम से नहीं आता, यह परमेश्वर के भय के माध्यम से आता है। यह नहीं कहता कि सिद्धांत की समझ बुद्धि की शुरुआत है। But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. लेकिन परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। And these people have turned the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. और इन लोगों ने हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को अनैतिकता में बदल दिया है और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु को अस्वीकार कर दिया है। Notice what these people who have a lack of the fear of God do. They twist the message of God's grace. ध्यान दे कि ये लोग जिनके पास परमेश्वर का भय नहीं है, वे परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को into something that becomes a license for them to sin. कुछ ऐसा बना देते हैं जो उनके लिए पाप करने का अनुज्ञा पत्र बन जाता है। Now the reason why the book of Jude, Jude's letter has a particular application for today in the days in which we live, is because these persons have crept into Christendom today as well. अब यहूदा और पौलुस के पत्र की पुस्तक का आज के दिनों में एक विशेष अनुप्रयोग है जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि ये लोग आज भी मसीहत में घुस आए हैं। Who proclaim a loose and a lax attitude towards sin. And how do they do it? By speaking of the grace of God as something that is constantly there to cleanse us. जो पाप के प्रति एक ढीला और आरामदायक रवैया रखते हैं, और वे ऐसा कैसे करते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करके कि यह कुछ ऐसा है जो लगातार मौजूद है, हमें शुद्ध करने और हमें क्षमा करने। And forgive us, and it becomes something that eventually turns out to be a license for sin. और हमें क्षमा करने, और यह कुछ ऐसा बन जाता है जो अंततः पाप के लिए अनुज्ञा पत्र बन जाता है। And thus they deny our only Master and Lord Jesus Christ. It's almost as though they say Jesus Christ hasn't come. और इस प्रकार वे हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह को नकारते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे वे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ ही नहीं है। Because under the Old Testament law, the Old Testament law itself put a certain fear of God into people. क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था के तहत पुराने नियम की व्यवस्था ने ही लोगों में परमेश्वर का एक निश्चित भय डाला था। The law of Moses taught people a certain fear of God. And if people say that we are now gone beyond law, we have come to grace. मूसा की व्यवस्था ने लोगों को परमेश्वर का एक निश्चित भय सिखाया था, और यदि लोग कहते हैं कि हम अब व्यवस्था से परे चले गए हैं, हम अब अनुग्रह में आ गए हैं, and they've lost that basic fear of God which even the law brought, what does it amount to? It amounts to denying Jesus Christ. It amounts to denying that Jesus Christ has ever come. और उन्होंने परमेश्वर का वह मूल भय खो दिया है जो व्यवस्था भी लाया था। इसका क्या मतलब है? यह यीशु मसीह को नकारने के बराबर है। यह इस बात को नकारने के बराबर है कि यीशु मसीह कभी आए हैं। Or it must be another Jesus who is lower than Moses, who is not even able to raise his followers to the level
that Moses raised his followers? या यह कोई दूसरा यीशु होना चाहिए जो मूसा से भी कम है, जो अपने अनुयायियों को उस स्तर तक भी नहीं उठा पा रहा है जिस स्तर तक मूसा ने अपने अनुयायियों को उठाया था? It's amazing the fear of God that the law brought into the lives of God-fearing Israelites. And when we see Christians who claim to be following Jesus Christ, यह आश्चर्यजनक है परमेश्वर का भय जो व्यवस्था ने परमेश्वर से डरने वाले इजरायलियों के जीवन में लाया, और जब हम मसीह लोगों को देखते हैं जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, in whose lives there is sometimes not even a small percentage of that fear of God which those Old Testament followers of Moses had, जिनके जीवन में कभी कभी परमेश्वर के उस भय का एक छोटा सा प्रतिशत भी नहीं होता जो मूसा के पुराने नियम के अनुयायियों में था, then we can say that must be another Jesus they are following. Because the true Jesus Christ must certainly be able to raise people to a higher level than Moses raised people in the Old Testament. तो हम कह सकते हैं कि वे किसी दूसरे यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा यीशु मसीह निश्चित रूप से लोगों को पुराने नियम में मूसा द्वारा उठाए गए लोगों की तुलना में अधिक ऊंचे स्तर पर उठाने में सक्षम होना चाहिए। And so he says these people have turned the grace of God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. They've perverted the grace of God into immorality. They live in sin and they cover it all up by saying the blood of Jesus cleanses us from all sin. For example, there's a very common expression found among believers called the blood covers us. और इसलिए वो कहता है कि इन लोगों ने परमेश्वर की कृपा को अनैतिकता में बदल दिया है और हमारे पवित्र गुरु और प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अनैतिकता में बदल दिया है। वे पाप में रहते हैं और वे यह कहकर सब कुछ ढक लेते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए विश्वासियों के बीच ये एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति पाई जाती है, जैसे कि लहू हमें ढकता है। And it's accepted. Lord, cover us with your blood, people pray. But have you noticed that there's not a single place in the New Testament where it speaks about the blood covering us? और यह स्वीकार किया जाता है, प्रभु हमें अपने लहू से ढके। लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि नए नियम में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां यह कहा गया हो कि लहू हमें ढक रहा है। The covering of the blood of bulls and goats was in the Old Testament. In the New Testament, it speaks not about covering, but it speaks about the blood of Jesus cleansing us, removing that sin altogether. बैलों और बकरियों के लहू का आवरण पुराने नियम में था। नए नियम में यह ढकने के बारे में नहीं बोलता है, बल्कि यह यीशु के लहू के बारे में बोलता है जो हमें शुद्ध करता है, उस पाप को पूरी तरह से हटा देता है। Cleansing it away and delivering us from its power. Here is an example of how God's word is twisted in these days to mean something other than what it means, resulting in Christians living at a far lower level. पाप को शुद्ध कर देता है और हमें उसकी शक्ति से मुक्त कर देता है। यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर का वचन इन दिनों इसका अर्थ कुछ और करने के लिए इसे तोड़ मरोड़ दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मसीह बहुत ही निचले स्तर पर रह रहे हैं। Than even the followers of Moses. The grace of God has been turned into license for sin. These are the days in which we live. मूसा के अनुयायियों की तुलना में परमेश्वर के अनुग्रह को पाप के लिए अनुज्ञा पत्र में बदल दिया जा रहा है। ये वे दिन है जिनमें हम रहते हैं। And let's remember this. When we pervert the grace of God into a license for sin, we are actually denying our true Lord and Master Jesus Christ. हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाप के लिए अनुज्ञा पत्र में बदल देते हैं, तो हम वास्तव में अपने सच्चे परमेश्वर और मालिक यीशु मसीह को नकार रहे हैं। And that is why we need in this day to contend earnestly, wholeheartedly, even if it makes us unpopular, for that true faith. और इसलिए हमें इस दिन पूरे दिल से ईमानदारी से संघर्ष करने की जरूरत है, भले यह हमें सच्चे विश्वास के लिए अलोकप्रिय बना दे, which has been delivered to the saints once for all, which is meant to deliver us from sin's power completely. जो संतों को एक बार के लिए दिया गया था, जिसका उद्देश्य हमें पाप की शक्ति से पूरी तरह से मुक्ति दिलाना है।